Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to second lecture of machine design. So, in previous lecture, we have introduced the course outlines, and we have discussed some basic terminologies which are involved in machine design. Okay, like specifically here we are dealing with the design of different mechanical components. Okay, and as we know that we have different types of machineries which will be used in agricultural operations, in agricultural activities to improve the net output values of the agricultural product. Okay, so we have discussed in the previous class the different phases of design and the different factors which will be considered during the designing of different mechanical components. Today we will discuss some more important topics or theoretical backgrounds before going into the detail or parametric design of different mechanical components. Okay, like suppose we will have to take care of the safety and product reliability. Okay, anything which you are going to design, it will be safe in term of humanity, environment and society. ठीक है, जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हैं ना, वो सेफ होना चाहिए. सेफ्टी फिर दो टाइप्स का है ना. एक सेफ्टी ये है कि द प्रोडक्ट विल वर्क विदाउट फेलेवर. ठीक है, जो चीज आप डिजाइन कर रहे हैं ना, जो मैकेनिकल कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हैं, जो मशीनरी आप डिजाइन कर रहे हैं, it will work without failover. So then we will say that the component is safe. एक सेफ्टी इस साइड पे है और एक सेफ्टी जो है वो इस साइड पे कि द machine which you have designed या the component which you have designed, it will save, yeah, it will not harmful to the society, environment and human beings. Okay, so we will discuss the safety and also we will discuss the product reliability. ठीक है, mean that the person, yeah, the designer or the manufacturer will be liable in term of any mess happen or any failure of the component. ठीक है, अगर मशीनरी में या कंपोनेंट में कोई फेलेवर आ जाए तो फिर उसका जो मैन्युफैक्चरर है या डिजाइनर है, दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सो वी विल डिस्कस द डिफरेंट points which are related with the safety and product reliability, and then we will have the factor of safety. Okay, again as we have discussed that generally जब एक कंपोनेंट जो है वो विदाउट फेलेवर अपना काम कर रहा होता है, without any harmfulness to the society, human beings or environment, then we will say that the component is safe. ठीक है, या अगर एक कंपोनेंट जो काम कर रहा है विदाउट फेलेवर, फेल नहीं हो रहा. ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल, सपोज अगर एक शॉफ्ट है ना, वो पावर ट्रांसमिट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो अगर वो विदाउट फेलेवर पावर ट्रांसमिट कर रहा है, so we will say that the component is safe. Now how much it is safe, हमने क्वांटिफाई करना है. 90% है, 95% है, 85% है. ठीक है, so the quantification of that safety is called the factor of safety. So we will discuss that one, and also we have the reliability. Okay, one is the liability and second one is the reliability. Reliability is the again the reliability is related with the factor of safety, that how much is the chances that the product will work without failure. Okay, consistently good in quality or consistently good in performance. Okay, mean work without failure. How much the component, how much the product will work without failure, that is called reliability.
और एक हमारे पास लिएबिलिटी है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिजाइनर। अगर कंपोनेंट में या प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट आ जाए तो डिजाइनर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए उसको लिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोग अगर कोई चीज खरीदते हैं ना मार्केट से, तो उसमें हम पूछते हैं कि इसकी गारंटी या वारंटी है कि नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस, कॉस्ट एंड एस्थेटिक, एनीथिंग विच यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म ऑफ मैकेनिकल डिजाइन में। अगर आप कोई मैकेनिकल चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो आपने ये भी मेंशन करना है कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए, सो हाउ इट विल बी मेंटेन, what will be the cost of the product which you are manufacturing or which you are designing, what will be the aesthetic or look of the product, ये codes and standard। most importantly mechanically जो भी चीज आप मैन्युफैक्चर करते या डिजाइन करते, तो आपने कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, कुछ कोड्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, कि सपोज अगर आप एक मैकेनिकल कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो कौन सा मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। सपोज आप स्टील यूज कर रहे हैं, तो स्टील का कंपोजिशन क्या होगा, फिर उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, या अगर आप इतना डायमीटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कितना लेंथ होना चाहिए। ठीक है, सो यू विल हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स और सम कोड्स of the international organizations, and then we will discuss the evaluation and presentation, which we have also discussed in the previous class. So these are the most important terms which will be considered before going into the detailed design of any mechanical component. That first you will have to take care of the safety of the product, you will have to consider the reliability of the product. Okay, you will have to define or quantify the reliability or factor of safety. Also you will have to mention the maintenance cost, look of the product, and you will have to define the codes and standards कि किन standards के मुताबिक आप अपना product जो है वो manufacture कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है that is safety and product liability. Again we are dealing with the mechanical machineries. So mechanical machineries में जो है different components होते हैं। ठीक है, आप जस्ट सोचें ना अबाउट दी मैकेनिकल मशीनरीज की, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट एक व्हीकल की एग्जांपल ले लें, तो व्हीकल में क्या होता है, एक इंजन होता है, इंजन में सिलेंडर्स होते हैं, वहाँ पे पावर जनरेट होता है। ठीक है, फिर पिस्टन और शाफ्ट के जरिए जो है पावर व्हील को ट्रांसमिट होता है। ठीक है, गियर के जरिए हम पावर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पावर और स्पीड को वेरिएशन करने के लिए गियर्स यूज होते हैं। फिर व्हील के जरिए पावर जो है वो यूटिलाइज्ड होता है, व्हीकल मूव होता है। सो हमारे पास एक एक असेंबली होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। ठीक है, नाउ दोज कंपोनेंट्स अगर आप एज अ होल असेंबली कंसिडर कर लें, या आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को कंसिडर कर लें, so those components, yeah, that assembly will be safe in term of working, and it will be safe in term of human environment and society. Okay, so the strict liability concept of product liability generally prevails in the United States. Okay, I mean ये concept जो है वहां से generate हुआ है, and this concept states that the manufacturer of an article is liable for any damage or harm that result because of a defect. मीन अगर जो प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, या अगर एक चीज आपने डिजाइन की हुई है, तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई डिफॉल्ट आ जाए, या कोई फेलेवर आ जाए, या अगर दैट कंपोनेंट जो है वो हार्मफुल हो अगेन टू सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स, देन द मैन्युफैक्चरर विल बी रिस्पॉन्सिबल। दैट इज कॉल्ड द लिएबिलिटी। ठीक है, ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक सोशल कंसर्न होता है मैन्युफैक्चरर का, डिजाइनर का, कि जो चीज वो डिजाइन कर रहे हैं अगर वो कल सपोज अगर हार्मफुल हो, या अगर
काम जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहा, उसमें कोई डिफेक्ट है या कोई डिफॉल्ट है, then the manufacturer will be responsible. That is called the liability. And see, it is the legal doctrine that a manufacturer is liable for the consequences of any and all defects in the manufacture and design of the product. अगर एक चीज की डिजाइनिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में सपोज कोई डिफेक्ट आ जाए ना, तो ये किस वजह से होगा? That will be due to the negligence of the designer. डिजाइनर की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए ना, तो कल वो मार्केट में क्या करेगा? प्रोडक्ट वो किसी को हार्म भी कर सकता है या वो काम भी नहीं करेगा, वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट होगा. So obviously the manufacturer or the designer will be responsible. Okay, I mean even if during the production, जाहिर बात है जो एक चीज को डिजाइन कर रहा होता है ना, मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, वो सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, बट स्टिल if there is any defect or default, then the designer must be responsible. तो इसको स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी कहते हैं. ठीक है, आप लोगों ने सुने होंगे ना कि बाज जो लोकल प्रोडक्ट होता है, अक्सर वो शॉपकीपर्स क्या कहते हैं, ये जो है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एक बार आप चीज ले जाते हैं ना, तो फिर उसमें लिखा होता है ना कि नो रिटर्न, वापसी या तब्दीली नहीं होगी. तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी लिएबिलिटी जीरो है. वो अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो, उसमें अगर कोई डिफॉल्ट हो, अगर वो चीज काम नहीं कर रहा, वो डैमेज्ड हो या अगर वो हार्मफुल हो, तो मैन्युफैक्चरर या डिजाइनर जो होते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. सो उस चीज की या उस प्रोडक्ट की लिएबिलिटी जीरो होती है. और एक हमारे पास है स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी. अगर कंपोनेंट में या प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुलनेस हो या कोई डिफेक्ट हो, तो फिर मैन्युफैक्चरर उसकी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी. ठीक है, देखा है आप लोगों ने? इस तरह कोई एग्जांपल दे सकते हैं जीरो लिएबिलिटी की? जी अवैस. हम्म. जी, कोई एग्जांपल है आप लोगों के माइंड में कि आप लोगों ने इस तरह कोई चीज लिया और उसमें लिखा हो कि नाकाबिली वापसी और उसको तब्दील नहीं करते ना? That is called the zero liability. And it does not matter whether the manufacturer know about the defect or even could have known about it. अक्सर इस तरह होता है ना कि एक प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री वाले या डिजाइनर्स, तो उनको पता होता है कि इसमें ये डिफेक्ट है. जी जी सर. आप कहाँ थे? अभी तक सोए हुए थे? हम्म. सी, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर कोई किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट हो, then the manufacturer or designer will be responsible. तो फिर उनको या पता होता है डिफेक्ट के बारे में और या पता नहीं होता, बट स्टिल दे विल बी रिस्पॉन्सिबल. इसको स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज जो है वो 10 साल पहले मैन्युफैक्चर किया गया है और उस टाइम जो प्रोडक्ट था उसमें कोई डिफेक्ट नहीं थी, लेकिन सपोज 10 साल बाद उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, then again the manufacturer is still liable. इसको स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी कहता है. ठीक है, सो जब भी
एन इंजीनियर आप किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो आपने ये माइंड में रखना है कि इफ इन फ्यूचर और करंटली if there is any damage or harmness or defect or default, then you must be responsible for it. That is called the strict liability. And under this concept, the plaintiff needs only to prove that the article was defective and that the defect caused some damage or harm. ठीक है, और जो कस्टमर्स होते हैं ना, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो यूटिलाइजर्स होते हैं, उन्होंने डिफेक्ट को प्रूफ करना है, तभी मैन्युफैक्चरर उसका लिएबल होगा। ठीक है। Best approaches to the prevention of product reliability are good engineering in analysis and design. Now again, अगर आप किसी प्रोडक्ट की लिएबिलिटी नहीं रखते, सपोज अगर एक प्रोडक्ट है ना, उसकी लिएबिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, डिजाइनर उसको वापस नहीं लेगा, सपोज अगर उसमें कोई इफेक्ट हो, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो फेल होगा, बिकॉज लोग उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं होंगे, लोग तो रिस्क नहीं लेते ना, कस्टमर्स तो रिस्क नहीं लेते। अगर दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट की लिएबिलिटी 0 है और दूसरा प्रोडक्ट है उसके लिएबिलिटी है, सो द कस्टमर्स आर द पीपल विल एक्सेप्ट दिस वन, इसके मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दो पॉइंट्स है, अगर आप लिएबिलिटी नहीं रखते अपने प्रोडक्ट के, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो प्रोडक्ट क्या होगा, फेल होगा, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं होंगे, फिर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी, ज्यादा सेल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप और प्रोडक्ट की लिएबिलिटी रखते हैं तो फिर चांसेस है कि उसमें अगर कोई थोड़ा सा भी डिफेक्ट हो तो फिर कस्टमर्स क्या करेंगे, आपको वापस करेंगे ना प्रोडक्ट को। तो उस लिएबिलिटी से बचने के लिए आपने फिर क्या करना है, बेस्ट एनालिसिस करनी है ड्यूरिंग द डिजाइन। यू विल हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबल फैक्टर टू अवॉइड द चांसेस ऑफ लिएबिलिटी। अगर आप प्रोडक्ट की बेस्ट एनालिसिस और बेस्ट डिजाइनिंग कर लेना, सो देन यू कैन कीप द स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी। समझ आ रहे हैं ना, ये दो चीजें हैं ना, दो पॉइंट्स हैं। एक ये है कि अगर आप लिएबिलिटी को कंसिडर करते हैं तो फिर लोग क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाए तो वो आपको रिटर्न करेगा फिर, तो उससे आपकी जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट हो सकती है। और अगर आप लिएबिलिटी नहीं रखते, सो अगेन कस्टमर जो है वो आपके प्रॉफिट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे फिर। सो आपने लिएबिलिटी भी रखनी है, ठीक है, प्रोडक्ट की स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी भी रखनी है, एंड टू अवॉइड द लॉसेस या टू अवॉइड द टू मच रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर्स, आपने बेस्ट एनालिसिस करना होगा, बेस्ट डिजाइनिंग करनी होगी। समझ आ रहे? ठीक। यस सर। Yes, sir. अच्छा, and safety has become a matter of paramount importance these days in design. Machine must be designed to serve mankind, not to harm it during working and using. ठीक है, सो जो भी चीज आप डिजाइन करें, फर्स्ट आपने उसकी लिएबिलिटी कंसीडर करनी है, एंड फर्स्ट दैट डिजाइन विल बी सेफ इन टर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, लास्ट कुछ ईयर्स में एक बात चल रही थी कि जापान में जो है एक साइंटिस्ट ने रोबोट बनाया था, और फिर उस रोबोट ने अपना जो इन्वेंटर था उसको अटैक करके उसको किल किया था। सो दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ सेफ डिजाइन। ठीक है, अच्छा, नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है डिजाइनिंग में, आइदर इट इज एनी टाइप ऑफ डिजाइन, वो स्ट्रक्चरल डिजाइन हो, मैकेनिकल डिजाइन हो, इलेक्ट्रिकल डिजाइन हो, जो भी टाइप का डिजाइन हो,
आपने स्ट्रक्चर की, कंपोनेंट की, पार्ट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करनी है, दैट हाउ मच परसेंटेज the product, the component, or the structure or the machine will work without failure. ठीक है, आपने क्वांटिफाई करना है, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, the purpose of a factor of safety is to minimize the risk of failure। मीन आपको पता होना कि अगर एक मशीनरी है, उसको अगर आप सपोज 1000 न्यूटन लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 90% है। और अगर उस मशीनरी को सपोज आप 1500 न्यूटन पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 50% होगी। So now you can get the idea, you can get the information that how much you can minimize the risk of failure। तो फिर हम मेंशन करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को आपने यूज करना है तो ये इतने लिमिटेशन में यूज करना है। ठीक है, तो डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी that is generally represented by small n, and that is also called the design factor, and that is the applied load divided by the maximum possible load through which the component can withstand। ठीक है, सपोज अगर आपके पास एक कंपोनेंट है ना, इसकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, या ये कितने लोड पे फेल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल कितने लोड पे ये फेल हो सकता है। सो दैट विल बी द मैक्सिमम लोड अप टू विच दिस कंपोनेंट कैन रेजिस्ट। मीन मैक्सिममली कितने लोड तक ये कंपोनेंट रेजिस्ट कर सकता है, एक ये हो गया। और दूसरा ये कि एवरेजली इस कंपोनेंट पे प्रैक्टिकली कितना लोड अप्लाई होगा, प्रैक्टिकली इस पे कितना लोड अप्लाई होगा, और मैक्सिममली ये कितना लोड रेजिस्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सपोज अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को, तो अगर एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी है, उसमें एवरेजली आप कितना लोड कैरी कर रहे हैं, एवरेजली रोजाना आप जो है उसकी उसमें कितना लोड जो है वो कन्वे कर रहे हैं। और मैक्सिममली अगर इसके ऊपर आप लोड इंक्रीज करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, एट द एंड वो जवाब दे देगा ना कि अब बस मैं नहीं कर सकता। सो वो मैक्सिमम लिमिट कितना है, और एवरेजली आप उसके ऊपर कितना अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली। सो द रेशियो ऑफ दैट एक्चुअल अप्लाइड लोड टू द मैक्सिमम पॉसिबल लोड, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, या स्ट्रेंथ डिवाइड बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट व्हिच कैन बी ऑफर्ड। मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, जिसके बाद जो चीज होता है वो फेल हो जाता है। और ये क्या है, ये एक्चुअल अप्लाइड लोड है ना, कि एक्चुअल अप्लाइड आपने कितना लोड किया हुआ है और कितना वो मैक्सिममली बर्दाश्त कर सकता है। इन दोनों का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पॉसिबल होल्डिंग मैक्सिमम फोर्स और डिवाइड बाय अप्लाइड लोड। सॉरी, मैंने उल्टा तो नहीं बताया आप लोगों को। पॉसिबल होल्डिंग मैक्सिमम फोर्स, नहीं इस तरह नहीं है, ये उल्टा है। मीन हाउ मच इज द अप्लाइड लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, वो मैक्सिममली 10 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है, और एवरेजली आप उसके ऊपर 8 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, 80%।
ठीक है, नहीं यार वो ठीक है, सॉरी, अगेन ये इक्वेशन ठीक है, मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की ना उसको आप जस्ट उल्टा कर लें, रिवर्स कर लें। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द मैक्सिमम पॉसिबल लोड which a body can resist divided by the actual applied load। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 न्यूटन मैक्सिममली बर्दाश्त कर सकता है और आप उसकी ऊपर 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी? 2। मतलब ये कि 200% वो सेफ होगा। ये समझ आ गया आप लोगों को ये पॉइंट? यस जी सर। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है या एक मशीन है, एक कंपोनेंट है मैकेनिकल, वो 10 न्यूटन पे फेल हो सकता है, लेकिन आप उस पे 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना सेफ होगा? 200% सेफ होगा, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 होगी। ठीक है, अच्छा, अलाउेबल लोड डिवाइड बाय सब्जेक्टेड लोड। ठीक है, मैक्सिममली एक चीज के ऊपर हम कितना लोड अप्लाई करते हैं? जितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है ना, एंड बियॉन्ड दैट लोड वो कंपोनेंट क्या होगा? फेल होगा। सो मैक्सिमम अलाउेबल लोड डिवाइड बाय एक्चुअल सब्जेक्टेड लोड, मीन कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना आपने अप्लाई किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, समटाइम इट इज यूजफुल टू एक्सप्रेस द अलाउंस फॉर दीज अनसर्टेनिटीज सेपरेटली by selecting that factor of safety in strength, mean factor of safety in term of strength and factor of safety in term of load। लोड जो है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है ना जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ जो है ये इंटरनल फैक्टर है कंपोनेंट का, जिसकी बेस पे वो रेजिस्ट कर रहा है कि एक मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, सो दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर हम फाइंड करते हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन लोड एंड एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड द डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और एक हमारे पास होता है रियलाइज्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फिर फर्दर टाइप्स है उसकी, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ टू द एक्चुअल और कंप्यूटेड स्ट्रेस। ठीक है, एक मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है फ्रॉम द इट्स पर्टिकुलर कंपोजिशन, और एक आप सपोज कैलकुलेट कर लेना थ्योरेटिकली, तो इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द रियलाइज्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नाउ एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो सिमिलर टर्म्स है, ठीक है, इंटरचेंजेबल टर्म्स है। रिलायबिलिटी जो है दैट इज द वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट विदाउट फेलेवर, वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट विदाउट फेलेवर। तो एक कंपोनेंट कितना जो है वर्केबल है विदाउट फेलेवर? 20% वर्केबल है, 100% वर्केबल है, 200% वर्केबल है, तो इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखें, रिलायबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी डिजाइन, and a design machine should work effectively and reliably। And see, this is the definition of the reliability, that the probability that an element or machine will not fail during the operation, that is called the reliability। ठीक है, सपोज अगर हम कहते हैं कि एक कंपोनेंट है उसकी रिलायबिलिटी 90% है, तो इसका मतलब क्या है कि there is 90% chances that the machine will not fail। या इस तरह भी हम कह सकते हैं ना कि there are 10%
ऑफ चांसेस दैट द मशीन विल फेल। तो इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी इंटर रिलेटेड है। रिमेंबर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है दैट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम अलाउेबल लोड डिवाइड बाय द एक्चुअल अप्लाइड लोड, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट है, एक प्रोडक्ट है, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी ग्रेटर देन 1.1 और 1.2 से 1.8 होना चाहिए। इस तरह भी नहीं है कि सपोज फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 3 है तो उसको फिर ओवर डिजाइन कहते हैं। एक चीज को अगर आप सेफ बनाना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे ना। तो अगर एक चीज को आप ओवर सेफ डिजाइन कर लें तो क्या हो जाएगी, कास्ट उसकी इंक्रीज होगी। तो आपने बहुत ज्यादा ओवर सेफ्टी भी नहीं करनी और अंडर सेफ्टी डिजाइन भी नहीं करना। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, वो पेलेवर से बचने के लिए क्या करते हैं, ओवर डिजाइनिंग करते हैं। ओवर डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि वो जो बीम और कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसमें स्टील बार ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, वो सेफ्टी को कंसिडर करते हैं, ओवर सेफ्टी कर देते हैं, लेकिन जो ओनर होता है उसके ऊपर फिर एक्सपेंसेस ज्यादा आ जाते हैं, मीन कास्ट इंक्रीज हो जाता है। सो जो स्टैंडर्ड लिमिटेशंस है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, दैट विल बी फ्रॉम 1.2 टू 1.8। अगर किसी प्रोडक्ट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 से कम हो तो उसकी फेलेवर के चांसेस ज्यादा होंगे, और किसी प्रोडक्ट की अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.8 से ज्यादा हो तो उसका कास्ट ज्यादा होगा। ठीक है, सो अलाउएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है फ्रॉम 1.2 टू 1.8 है। अच्छा, नाउ रिलायबिलिटी जो है, it is the percentage या that is the chances या that is the probability that a machine or an element will work without failure। कितने परसेंट जो है एक कंपोनेंट काम कर सकता है विदाउट फेलेवर, इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सो रिलायबिलिटी विल लाइज बिटवीन 0 and 1। द चांसेस ऑफ वर्किंग विदाउट फेलेवर, तो उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो जाहिर बात है ये 0 और 100% के दरमियान होगा। ठीक है, सो एवरी डिटेल शुड बी एग्जामिन। अक्सर ये होता है कि एक मशीन में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो हर एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कितनी है और कंबाइनली उस मशीन की ओवरऑल रिलायबिलिटी कितनी है। सो बीइंग अ डिजाइनर आपने ये दोनों कंसिडर करना है। सो पॉसिबल ओवरलोडिंग अगर आ जाए किसी इक्विपमेंट पे या किसी मशीन पे, किसी कंपोनेंट पे, उसकी अगर वियरिंग और टीयरिंग आ जाए, एक्सेसिव हीट अगर प्रोड्यूस्ड हो जाए किसी मशीनरी में, इट कैन इफेक्ट द रिलायबिलिटी। मतलब ये रिलायबिलिटी हमने डिफाइन कर दी ना कि दैट इज द चांसेस ऑफ द वर्किंग या द परसेंटेजेस ऑफ द वर्किंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्किंग ऑफ एन एलिमेंट विदाउट फेलेवर। सो अगर आप एक कंपोनेंट ऐसे इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, उस पे ओवरलोडिंग आ रहा हो, तो फिर रिलायबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज करना है फिर। So there is no single answer for this, but an overall safe design approach and care at every stage of design would be result in a reliable machine. Mean different factor आ सकते हैं which can affect the design, but आपने हर एक को consider करना है। ठीक है, mean a reliability of 0.9 means that there is 90% chance that the machine will perform its function without failure। मीन अगर आपको कोई कह दे ना कि अगर एक कंपोनेंट है उसकी रिलायबिलिटी 90% है, तो उसका मतलब क्या होगा कि 90% द कंपोनेंट या द मशीन या द एलिमेंट जो है वो विदाउट फेलेवर काम कर सकता है।
उसके फेलेवर के चांसेस कितने हैं? 10% है। सो द स्टेटिस्टिकल मेजर या द चांसेस या द प्रोबेबिलिटी that a mechanical element will not fail during operation is called reliability of that component. ठीक है। अब स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि सपोज बीइंग एन इंजीनियर या बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, बीइंग अ डिजाइनर, अगर आप एक चीज डिजाइन कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो 1000 में से अगर 6 खराब आ जाए तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। सिंपलेस्ट एग्जांपल, सपोज अगर अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप जो है पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर 1000 पेंसिल्स में 6 पेंसिल्स खराब आ जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ये डिजाइनिंग जो है ये एक्सेप्टेबल है, या वर्किंग ऑफ द मशीनरी जो है वो एक्सेप्टेबल है। जिस मशीनरी से आप पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, हम उस मशीनरी की बात करते हैं। या सपोज अगर आप एक एक नट एंड बोल्ट डिजाइंस करते हैं ना, सिंपली जो नट एंड बोल्ट्स होते हैं, अगर आप 1000 नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चर कर लें और उसमें 6 खराब आ जाए, वो एक्सेप्टेबल है। अब सपोज अगर 1000 में 10 खराब आ जाए, 1000 में से 20 खराब आ जाए, 1000 में से 50 खराब आ जाए, तो ये इसकी रिलेबिलिटी कम होगी। ठीक है। अगर 1000 में से 6 जो है खराब आ जाए तो उसकी रिलेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 6 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 99.4%। ठीक है। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सो अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखें कि एक चीज जो है ये मैकेनिकल कंपोनेंट है या मैकेनिकल मशीनरी है, ठीक है, या एक एलिमेंट है, वो कब एक्सेप्टेबल होगा? जब उसकी रिलायबिलिटी जो है 99.4% या उससे ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा, now the designer task is to make a judicious selection of material, process and geometry so as to achieve a reliable goal. Now आपने इस रिलेबिलिटी को मेंटेन रखना है या इसको अचीव करना है, तो ये कब अचीव होगा? जब आप प्रॉपरली बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट कर दें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और उसकी बेस्ट जियोमेट्री, लेंथ, विड्थ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया, इसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर ले। अगेन एट कहां पे चले जाते हैं? एनालिसिस पे। अगर आप डिजाइन की प्रॉपर एनालिसिस कर लें तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। सो if the objective reliability is 99.4% और above, तो अगर आपने ये रिलायबिलिटी अचीव करना है ना, सो कौन से मटेरियल यूज करने होंगे, कौन सा प्रोसेस यूज करना होगा, उसके डायमेंशंस क्या होंगे? दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन डिजाइन। मीन अगर आपने मैक्सिमम रिलायबिलिटी रखनी है ना, तो आप बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट कर लें, उसकी प्रॉपर डायमेंशन सेलेक्ट कर लें, रिलायबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। एक है रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। जब किसी प्रोडक्ट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप प्रॉपर सेलेक्ट कर लेना, तो उसकी रिलायबिलिटी भी ज्यादा होगी। और अगर एक प्रोडक्ट जो है वो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो जाहिर बात है उसके फेलेवर के चांसेस ज्यादा होंगे। दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल मेथड व्हेन द रिलायबिलिटी इज कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और थर्ड जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है कि सपोज डिफरेंट सिचुएशंस आ सकते हैं ना, विच कैन फेल योर डिजाइन या विच कैन फेल द वर्किंग ऑफ द एलिमेंट। वो नेचुरल डिजास्टर भी आ सकता है, एक अनवांटेड एक्सीडेंट भी आ सकता है। ठीक है। तो आपने एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करना है, स्टेटिस्टिकल अप्रोच यूज करना है, अंदाजतन अप्रोच यूज करना है कि जो प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हैं वो रिलायबल हो। ठीक है। अब देखें,
सपोज वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स और वो सीरीज में है। एक तो हमारे पास एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा ना, उसकी इंडिविजुअल रिलायबिलिटी होगी। अगर एक कंपोनेंट है तो उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, जितना उसका परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेशन है या परसेंटेज ऑफ वर्किंग है विदाउट फेलेवर, दैट विल बी द रिलायबिलिटी ऑफ द सिंगल कंपोनेंट। नाउ सपोज अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइंड है, मीन एक सिस्टम है, तो सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, तो इस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी डिफरेंट होगी, इस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी डिफरेंट होगी, इस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी डिफरेंट होगी। ओवरऑल सिस्टम का रिलायबिलिटी क्या होगा, इट इज आल्सो अ क्वेश्चन। ठीक है, अगर हर एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी डिफरेंट है ना, और उससे एक सिस्टम बन जाए, तो फिर सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास 3 टाइप्स के सिस्टम्स हैं। एक है सीरीज सिस्टम। क्या है, सीरीज सिस्टम है। इन इस तरह एक कंपोनेंट है, उसकी रिलायबिलिटी 0.9 है, दूसरा कंपोनेंट है उसकी कंपोनेंट 0.8 है, तीसरा कंपोनेंट है उसकी कंपोनेंट 0.99 है। लेकिन ये कंपोनेंट्स क्या है, इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए ना, पूरा सिस्टम फेल होगा। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए ना, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कंपोनेंट्स की जो रिलायबिलिटी है वो सीरीज में है। मीन दिस इज अ सिस्टम इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर इन सीरीज एंड दे ऑल हैव टू वर्क फॉर द सिस्टम टू वर्क। मीन सिस्टम कब काम करेगा, जब तीनों कंपोनेंट्स काम कर रहे हो। अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए, सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट जो है वो सीरीज में है। तो फिर उनका जो सिस्टम का जो रिलेबिलिटी है, डेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिलायबिलिटीज। एक सिस्टम में अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट सीरीज में हो, तो फिर सिस्टम का रिलायबिलिटी क्या होगा, that will be equal to the product of the reliabilities of the individual components। तो इस प्रोसेस का रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा, 71%। ठीक है, समझ आ गया सीरीज का। यस सर। यस सर। अच्छा, मतलब ये है कि इस तरह कंपोनेंट्स से एक असेंबली बनी हुई है। अगर उन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट भी खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, सो then the reliability of the whole system or the whole process will be the product of this। and you can see whole system का reliability कितना है, 71% है। that is less than the reliability of the lowest reliable component। lowest reliable component क्या है, 0.8% है ना, सॉरी 80% है ना, और टोटल सिस्टम की रिलेबिलिटी क्या है, 71%। सो कंक्लूजन ये है कि if the components are connected in series, then the system will work if all the components are working reliably। अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए, पूरा सिस्टम फेल होगा। और सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो लीस्ट रिलायबल कंपोनेंट से भी कम होगी। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा है दैट इज दी व्हेन द कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल। सपोज यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है। अगर तीनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट भी काम कर रहा है ना, सिस्टम चलेगा। 3 कंपोनेंट्स है ना, अगर एक फेल हो जाए फिर भी सिस्टम फेल नहीं होगा, अगर 2 फेल हो जाए फिर भी सिस्टम फेल नहीं होगा, जब तक ऑल कंपोनेंट्स फेल ना हो। तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड parallel system। Mean this is a system that will fail if all the components fail। अगर सारे कंपोनेंट्स फेल हो जाए फिर सिस्टम फेल होगा। ठीक है,
एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में अगर है तो? सर घर में जो वायरिंग होता है घर में जो वायरिंग होते हैं उसमें क्या होता है? सर, वो पैरेलल होता है, वो पैरेलल होता है ना। उसमें अगर एक खराब हो जाए बाकी खराब नहीं होते हैं। नो सर। ठीक है। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लें मैकेनिकल मशीनरीज में, कि मैकेनिकल मशीनरीज में डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सो ये सीरीज है, और फिर पूरे सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिलायबिलिटीज। पैरेलल सिस्टम ये है कि अगर एक कंपोनेंट में या एक सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और जब तक सारे कंपोनेंट्स फेल ना हो सिस्टम काम करेगा। ठीक है। और इसकी जो सिस्टम रिलायबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स टू बी फेल्ड। ठीक है। इन ऑल कंपोनेंट्स की फेलेवर की चांसेस कितने हैं, तो 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास सिस्टम का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपोनेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.97 है, एक और कंपोनेंट है उसके साथ पैरेलल में, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.97 है। ठीक है। एक और कंपोनेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.97 है। अब ये तीन कंपोनेंट्स है, ये क्या है, पैरेलल में है, तो इसकी फेलेवर की चांसेस कितने हैं, 0.03। इस कंपोनेंट की इंडिविजुअल की चांसेस कितने हैं, 0.03। इस कंपोनेंट की इंडिविजुअल की चांसेस कितने, 0.03। नाउ इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 0.00009 9 या 27 इस तरह आ जाएगा। ठीक है। नाउ 1 माइनस दिस वैल्यू, इससे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द रिलायबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम। ठीक है। 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कंपोनेंट टू फेल, अगर एक कंपोनेंट के चांसेस 0.03% है फेलेवर की, दूसरी कंपोनेंट की फेलेवर की चांसेस 0.03 है, तीसरी की 0.03 है, तो तीनों की एट अ टाइम फेलेवर के चांसेस कितने होंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, देन 1 माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, इससे जो आ जाएगा that will be the reliability of the system, and this value will be greater than the maximum value in these reliabilities। ठीक है। और थर्ड जो है अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है। अच्छा, तो फिर हम एक और टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द फेलेवर रेट, नंबर ऑफ फेलेवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट टेस्टेड। मतलब ये है कि सपोज अगर आप एक कंपोनेंट्स है ना, आपके पास 1000 कंपोनेंट्स हैं, 1000 कंपोनेंट्स को आपने टेस्ट कर दी और उसमें 10 खराब आ गए, सो 1000 में से 10 खराब आ गए ना। ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, 0.1 या 0.0, सॉरी 0.01। ठीक है। सो 0.01 जो है दैट इज द फेलेवर रेट, या 1% इज द फेलेवर रेट। अगर 1000 में से 10 खराब है तो फेलेवर रेट क्या होगा, 1% होगा। ठीक है। नंबर ऑफ फेलेवर, नंबर ऑफ यूनिट आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, एक ये है। फिर हमारे पास फेलेवर रेट इन टर्म ऑफ आवर्स है कि अगर एक चीज को एक
एक कंपोनेंट है ना, उसको आप यूज कर रहे हैं, एक कंपोनेंट है, वो कितने घंटे बाद फेल हो रहा है। अक्सर बेल्ट्स होते हैं ना, बेल्ट्स जो है वो टूट जाते हैं। तो सपोज अगर एक कंपोनेंट है, वो आप 500 हावर ऑपरेट कर रहे हैं, तो 500 घंटों में वो कितनी दफा फेल हो रहा है। सपोज 500 घंटों में 5 दफा वो फेल हो जाए, 500 घंटों में 5 दफा एक प्रोडक्ट फेल हो जाए, तो उसका फेलेवर रेट क्या होगा? देट विल बी 1 in 100। मतलब यह कि 100 घंटों में एक बार वो फेल होगा। तो इसको अगर आप उल्टा कर लेना, मीन इज इक्वल टू 1 / 1/100, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 100 आवर्स। मीन टाइम बिटवीन द फेलेवर, मीन दो फेलेवर्स के दरमियान कितना टाइम है। Remember, these are the basic terminologies which are used during the design of the mechanical components। क्या आप किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, उसकी रिलेबिलिटी कितनी होगी, उसका फेलेवर रेट कितना होगा, या अगर एक कंपोनेंट को आप यूज कर रहे हैं तो कितने टाइम बाद वो फेल हो सकता है। ठीक है। नाउ एक और भी है कि सपोज अगर एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है ना, मैकेनिकल एलिमेंट है, एक नट है, एक बोल्ट है, या एक बेल्ट है। सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ले ले, सपोज अगर घर में एक वॉशिंग मशीन होता है ना, तो वॉशिंग मशीन में अगर बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट, तो उसकी रिलेबिलिटी कितनी है? सपोज 80% है। अब आपने अपने पास एक और बेल्ट भी रखा हुआ है बैकअप में। सो अगर आपके पास एक बैकअप में चीज अवेलेबल है, तो वो इक्विपमेंट की रिलेबिलिटी को इंक्रीज करती है। अगर फेल हो जाए ना, तो डायरेक्टली आप उसको चेंज कर दें, टाइम और काम तो डिस्टर्ब नहीं होगा। सो इफ यू हैव द बैकअप कंपोनेंट, देन द रिलेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। सो अगर आपके पास एक कंपोनेंट है, उसकी रिलेबिलिटी क्या है? आर है, और आपके पास बैकअप अवेलेबल है, तो अगर बैकअप अवेलेबल है तो उसकी रिलेबिलिटी भी आर होगी ना, दोनों सेम कंपोनेंट्स होंगे। तो फिर ओवरऑल रिलेबिलिटी क्या होगी? आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय 1 - आर। क्लियर? मीन अगर आपके पास एक कंपोनेंट है ना, उसकी रिलेबिलिटी आर है, और आपके पास बैकअप भी अवेलेबल है, फिर टोटल रिलेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू रिलेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट प्लस reliability of the second component multiplied by chances of failure of first component। सो अगर एक कंपोनेंट है, उसकी रिलेबिलिटी 80% है, और के पास एक बैकअप अवेलेबल है, तो बैकअप की रिलेबिलिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ये याद रखें। सो टोटल रिलेबिलिटी फिर क्या होगी? रिलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस रिलेबिलिटी ऑफ सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय चांसेस ऑफ फेलेवर। सो अगर एक कंपोनेंट की रिलेबिलिटी 80% है, तो चांसेस ऑफ फेलेवर कितना होगा? 0.2, 20% होगा ना। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, इट विल बी 0.16। 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आपके पास 0.96 बन जाएगा। अगर आपके पास बैकअप में कंपोनेंट अवेलेबल है, इट विल इंक्रीज द रिलेबिलिटी। क्लियर हो गई ये चीज है? यस सर। अच्छा, नाउ मेंटेनेंस एंड कास्ट एंड एस्थेटिक है। तो मेंटेनेंस एंड सेफ्टी आर ऑफन इंटरलिंक्ड। एक कंपोनेंट जो है या एक एलिमेंट जो है, वो कब सेफ होगा, रिलायबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जब आप प्रॉपरली उस कंपोनेंट के मेंटेनेंस करोगे। ठीक है। गुड मेंटेनेंस क्या होता है? इंश्योर द गुड रनिंग कंडीशन ऑफ द मशीनरी। अगर एक मशीनरी को आप प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं, गाड़ी होती है ना, मोटर कार होता है, उसको अगर बार बार आप उसकी सर्विस करते हैं, उसकी अलाइनमेंट करते हैं,
उसकी मीन इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है ना. So similar concept can be applied for any mechanical component. So if regular maintenance is applied to the डिफरेंट कंपोनेंट्स जिस पे लोड ज्यादा अप्लाई हो रहा है उसको अगर आप बराबरली देख के उसकी चेक कर ले, उसकी फेलेवर को ऑब्जर्व किया करें, सो एक्सीडेंटल फेलेवर से आप बच सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वहाँ पे आप लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया करें, सफाई किया करें डिफरेंट पार्ट्स की. सो इट विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट. ठीक है, जहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है ना उसकी आप लुब्रिकेशन कर लें, ये भी मेंटेनेंस में आ जाता है. ठीक है, कास्ट जो होता है किसी प्रोडक्ट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. कास्ट और लुक, एस्थेटिक जो है दैट इज लुक. जो भी चीज आप डिजाइन करें वो किस तरह दिखेगा, उसका शेप क्या होगा, डायमेंशंस क्या होंगे, उसकी साइज क्या होगा, ट्रांसपोर्टेबल होगा कि नहीं होगा, इसको एस्थेटिक कहते हैं. ठीक है, सो कास्ट और एस्थेटिक जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कास्ट इज एसेंशियली रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ मटेरियल. अगेन अगर आपने कास्ट कम रखना है तो फिर आप मटेरियल जो है सेकंड क्वालिटी की यूज कर लें, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी नहीं होगी, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होगी. अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखना चाहते हैं, रिलायबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, बेस्ट मटेरियल यूज करेंगे तो कास्ट इंक्रीज होगा. सो आपने एनालिसिस करनी है, बेस्ट सिलेक्शन करनी है कि कास्ट भी बेस्ट हो, मटेरियल भी फेल ना हो. ठीक है, एंड इन मेनी केसेस एस्थेटिक कंसिडरेशन जो था वो एसेंशियल नहीं होता. मीन अक्सर मैकेनिकल कंपोनेंट्स की मीन लोग ज्यादा उसको नहीं देखते, लेकिन बाज डिजाइन जो होते हैं, सपोज अगर मोबाइल फोन है ना तो मोबाइल फोन में एस्थेटिक को प्रॉपरली कंसिडर करते हैं, या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें एस्थेटिक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उसका लुक क्या होगा. ठीक है, मैकेनिकल कंपोनेंट में हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन आप माइंड में रखें कि एस्थेटिक जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजाइनिंग का, कि जो भी चीज आप डिजाइन करें उसका लुक क्या होगा. कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, अगेन वी हैव सम इंटरनेशनल जनरलाइज्ड कोड्स बेस्ड ऑन विच यू विल हैव टू डिजाइन. कि सपोज अगर आप एक शॉप डिजाइन कर रहे हैं तो उसका अगर आप लेंथ इतना रख रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, उसका विड्थ क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, रेशियोज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होनी चाहिए. तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जिसको आपने फॉलो करने होंगे. ठीक है, मतलब ये कि जो ओल्ड एजेस थे ना उसमें कोई स्टैंडर्ड्स या कोड्स नहीं थे, तो अगर एक डिजाइनर अपने लिए एक बोल्ट बनाता था तो डायमीटर डिफरेंट होता था, उसमें थ्रेड्स के साइज डिफरेंट होते थे. तो फिर एक जगह पे अगर एक बोल्ट अवेलेबल है तो दूसरी जगह पे वो यूज नहीं होगा, बिकॉज वहां पे बोल्ट डिफरेंट होगा, नट डिफरेंट होगा. सी, once upon a time there were no standard for bolt nuts and screws. समझ आ रहे हैं ना. मीन एक मैन्युफैक्चरर अपने मुताबिक मैन्युफैक्चर करते थे, दूसरी मैन्युफैक्चरर अपने मुताबिक करते थे, उसकी कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं होते और एक का दूसरे के साथ फिट नहीं होता था. तो स्टैंडर्ड जो है दीज आर दी सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर पार्ट्स, मटेरियल और प्रोसेसेस टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, एफिशिएंसी एंड स्पेसिफाइड क्वालिटी. अब मतलब यह है कि अगर यूएसए में एक बंदा एक नट बना रहे हैं ना तो वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करेगा कि मेरे पास अगर इतना डायमीटर है तो इतना लेंथ होना चाहिए, इसमें मैंने इतने थ्रेड्स बनाने हैं, थ्रेड्स का इतना रेडियस होना चाहिए, इतना डेप्थ होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए. और सपोज यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई बोल्ट बना रहा है तो वो भी अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के बनाएगा.
कि बोल्ट का वेट क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, इनसाइड डायमीटर क्या होगा, आउटसाइड डायमीटर क्या होगा, थ्रेड्स के दरमियान स्पेसिंग क्या होंगे। तो फिर अगर नट एक जगह से आप ले आए और बोल्ट दूसरी जगह से ले आए, दोनों फिट होंगे, बिकॉज बोथ आर manufactured are designed according to some standards. So a set of specifications for parts or materials to achieve the uniformity that are called the standards. और codes जो है, these are the set of specification during the analysis, design and manufacturing and construction. ठीक है कि स्टैंडर्डली, या अगर ये जो नट है ये आप किस मटेरियल से मैन्युफैक्चर करें, उसके लिए अपने कोड्स होते हैं, किस तरह मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, कहां पे करेंगे। सो कोड जो है दैट इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द एनालिसिस, और स्टैंडर्ड जो दीज आर द सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द यूनिफॉर्मिटी पर्पसेस। ये डायमेंशनल या क्वांटिफिकेशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड इज टू प्लेस अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स इन द स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, किसी की जो चीज आप बना रहे हो उसके साइजेस क्या होंगे, शेप क्या होगा, उसके वेराइटी क्या होगा, कि आपके पास यूनिफॉर्मिटी आ जाए ग्लोबली। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल, उनकी कोड्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ठीक है, एंड अगेन टू ऑब्जर्व द सेफ्टी, एक प्रोडक्ट है ना, आप अगर उसको मैन्युफैक्चरर डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी अगर स्टैंडर्ड सेफ्टी आपने अचीव करना है तो आपने उसको इंटरनेशनल कोड्स के मुताबिक मैन्युफैक्चर करना होगा। ये फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं ना, और उसकी जो वॉल्स हैं वो 120 माइल पर हावर विंड को रेजिस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 140 माइल पर हावर का विंड नहीं आएगा। मतलब यह है कि अगर आप एक मैकेनिकल कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 120 न्यूटन लोड के लिए, तो 120 न्यूटन लोड के लिए स्टैंडर्ड और कोड्स के मुताबिक आपने कितना लेंथ रखना है, कितना डाया रखना है, कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है और कौन सा शेप रखना है कि ये प्रोडक्ट जो है 120 न्यूटन पे सेफ हो। तो इस एलिमेंट को आपने अकॉर्डिंग टू द कोड्स एंड स्टैंडर्ड डिजाइन किया 120 न्यूटन लोड के लिए। अब जरूरी नहीं है कि 140 न्यूटन लोड उस पे अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा, लेकिन आपने जो डिजाइनिंग किया दैट इज फॉर 120 न्यूटन एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट कोड स्पेसिफाई की है, डिफरेंट स्टैंडर्ड स्पेसिफाई की है। अगेन फॉर एग्जांपल अगर आप एक नट बना रहे हैं ना, सिंपल एक नट बना रहे हैं, तो उसकी अपनी कोड्स है कि इसका लेंथ क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, इसके हेड का वेड्थ कितना होगा, हेड की डायमीटर कितनी होगी, थ्रेड्स कितने होंगे, थ्रेड्स के दरमियान स्पेस कितना होगा, थ्रेड का डेप्थ कितना होगा। ठीक है, सो वी हैव द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस and in each organization they have the different standards for material composition, for mechanical properties of the components, etc. ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए एल्यूमिनियम एसोसिएशन है, अमेरिकन गियर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनकी जो कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं दीज आर स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग हम डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में, तो उनमें हमने इन एजेंसीज की, इन ऑर्गेनाइजेशंस की कोड्स फॉलो करने हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये नेम आप लोगों ने सुना होगा। एस में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, उन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, ASTM, अक्सर हम जो कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू ASTM। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है, ब्रिटिश सोसाइटी यूके में जो यूज होते हैं, ये दो जो है ये अमेरिकन से, US है। मोस्टली पाकिस्तान में
यूएस स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है, पहले जो थे वो यूके स्टैंडर्ड्स फॉलो होते थे ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली पाकिस्तान में जो है फिर ये यूज होते हैं। मीन ये तो यूएस बेस्ड स्टैंडर्ड है, ये यूके बेस्ड स्टैंडर्ड है, और ये फिर इंटरनेशनल है। तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कोड्स और स्टैंडर्ड जो थे वो ये है। एक सिंपलेस्ट मैं आप लोगों को अगर एक एक्टिविटी दूं, तो आप लोग जो है जस्ट एक बोल्ट उठाएं, लार्ज साइज का बोल्ट उठाएं, तो उसकी हेड पे अक्सर यहाँ पे एक सिंबल होता है, सर्कुलर सिंबल होगा या रेक्टेंगुलर सिंबल होगा, या उसके बीच में कुछ लिखा होता है, बी या कोई वर्ड लिखा होता है। तो वो लिंक होता है स्टैंडर्ड और कोड्स के साथ। अगर आप अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन में जाए और वहां पे सर्च कर ले कि बी कोडेड बोल्ट से क्या मतलब है, तो आपको पूरा स्पेसिफिकेशन देगा कि ये इस तरह के मटेरियल से बना होते हैं, इसके इतना स्टैंडर्ड्स डायमेंशंस होते हैं, इतने थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स है। So these are the different organizations. They have defined the different codes and standards. So whenever you are designing or manufacturing any mechanical component, तो आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की कोड्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। And when you manufacture the product, when you design the product, then you will have to evaluate and present it. इन टॉपिक्स को हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि इवैल्यूएशन क्या होता है। दैट इज द सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ द डिजाइन। ठीक है, जो फेजेस ऑफ डिजाइन हमने डिस्कस की थी, इवैल्यूएशन जो है दैट इज द प्रूफ दैट द थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू डिजाइन इट विल वर्क विदाउट फेलेवर। या इवैल्यूएशन जो है दैट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ द प्रोटोटाइप। जो मॉडल आप बनाते हैं ना, उसको आप टेस्ट कर ले लेबोरेटरी में कि जिस पर्पस के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए आपने डिजाइनिंग की है, आया वो सोल्यूशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट इज इवैल्यूएशन। तो हम देखते हैं आपने जो डिजाइनिंग की है किसी पर्पस के लिए, किसी नीड के लिए, वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, वो रिलायबल है कि नहीं, वर्किंग विदाउट फेलेवर कर रहा है कि नहीं। अगर एक कंपोनेंट काम कर रहे लेकिन फेल होता है बार बार, वो रिलायबल नहीं होगा। और अगर मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है और आपने भी डिजाइन किया हुआ है, तो क्या वो मार्केट में कंपटीशन करेगा? और आपने जो डिजाइनिंग की है वो इकोनॉमिकल है। सो आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। कि जो चीज आपने डिजाइन की है उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रिलायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कोड्स एंड स्टैंडर्ड आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। सो अब उसको इवैल्यूएट कर ले कि वो नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिलायबल है, competitive है, इकोनॉमिकल है। If yes, then you have evaluated your product. तो फिर हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो प्रेजेंटेशन उसकी करते हैं, लोगों को उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक सेलिंग जॉब है। मीन कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट, दैट इज द लास्ट स्टेज। और ये प्रॉफिटेबल स्टेज होता है कि अगर आप प्रॉपरली अपनी डिजाइनिंग को एक्सप्रेस कर ले, एक्सप्लेन कर ले, प्रेजेंट कर लें, तो उसके कस्टमर ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। सो द इंजीनियर्स व्हेन प्रेजेंटिंग अ न्यू सोल्यूशन, इन जब आप एक चीज डिजाइन करके फिर उसको प्रेजेंट करते हैं ना, तो एक न्यू सोल्यूशन होता है, तो आपने ये प्रूफ करना होता है कि ये बेटर है। ठीक है, सो प्रूविंग दैट योर डिजाइन इज द बेटर वन, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। और 3 टाइप्स पे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ना, राइटिंग, स्पीकिंग और ड्राइंग। तो दीज 3 आर द प्रेजेंटेशन मोड्स। क्लियर?